Okay, then second application is these algorithms have an objective function which needs to maximize or minimize. Okay, so we start with the linear algebra and then we reached at here. Okay, the objective functions can be spectral. Okay, efficiency, that means beats, second, hertz. Okay, means these are the parameters. Okay, units, interface, that means inter symbol or multi users. Okay, if it is used by many people, then it is multi users. Energy efficiency means if you want to improve the energy or decrease the energy, then there is a vector space, etc. The minimization or maximization of the object function proceeds along one और सेवरल वेक्टर स्पेसेस. ओके, वो बहुत सारे वेक्टर स्पेस अगर आप कंसीडर करेंगे तब वो होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही वेक्टर स्पेस में वो काम हो जाता है. ओके, देन अनदर application is design of digital filter. Yes, this is from your branch. Okay, design of digital filter means if you want to find the any digital filter or design any digital filter, then there is a vector space. Okay, first common digital filters such as IIR means infinite impulse response filters. FIR, that means finite impulse filters. Wiener filters are implemented by applying polynomials derived from vector spaces. Okay, this is the another application of vector space. Okay, then fourth application what I mentioned here, optimization of manifolds. Okay, this is new for you. Okay, the manifolds is our branch of mathematics. So optimization of manifolds in system and control engineering applications, the solution space may lie inside a bounded space. Such spaces are characterized as manifolds. Okay, the optimal performance of such a system can depend upon the optimization of certain input parameters so that the output of the system lies within or perpendicular to the manifold. Okay, the optimization itself, if non-convex means वो convex नहीं है तब, if non-convex is converted into a convex problem by relaxing certain system constraint. Means if you want to convert the complicated or non-convex system to convex, then there is a vector space. Also, when you write down anything in Google and then you प्रेस एंटर की, देन दैट इज अ वेक्टर स्पेस. ओके, वो कितने टाइम में आपका जो रिजल्ट है वो फाइंड करके देता है, उसके लिए देखो पहले कितना टाइम लगता था, बहुत टाइम लगता था. नाउ इट इज मिनिमाइज. ओके, तो जो मिनिमाइजेशन प्रोसेस है, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन जो प्रोसेस है, वहां पे वेक्टर स्पेस बहुत यूजफुल रहता है. ओके, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए अगर आपको थोड़ा, जैसे आप एंटर करेंगे तो कुछ साइड के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ के लिए थोड़ा एकदम से आपको दे देगा, वो आपके बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है. लेकिन जो प्रोसेस हो रहा है उसके पीछे बैकग्राउंड में, दैट इज द वेक्टर स्पेस. ओके, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वेक्टर स्पेस यूज होता है. तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ vector space and it is very useful in your branch and other branch also. For example, computer IT, all branches are using vector space. Okay, so first, any confusion up to here, student? Any confusion? No, sir. No? Okay, this is only motivation to study this chapter. Okay, or you have many question about the application, so I put it in my slide. Okay, so first you have to understand about the group. Okay, क्योंकि जहां पर भी आपको ग्रुप पता चलेगा तभी आप फील्ड का पता चलेगा, और फील्ड आप जानते हो तब हम वेक्टर स्पेस के लिए हम बोल सकते हैं. ओके, तो आई स्टार्ट विद ग्रुप. ओके, सो ग्रुप, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रुप और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप? तो ग्रुप जो आप जानते हो कि आप ग्रुप मीन्स क्या होता है, आपको पता है कि रियल लाइफ में ग्रुप क्या होता है, कौन बताएगा? रियल लाइफ में आप बोलते हो ना कि हम ग्रुप में बैठे हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप? स्टूडेंट बताओ, ग्रुप क्या होता है?
Hello, am I audible? Hello. हाँ सर, ओके, तो बताओ चलो, ग्रुप ग्रुप क्या होता है? रियल लाइफ में आप ग्रुप किसको बोलते हैं? एक साथ हम बैठ कर वो डिस्कस Yes, करते हैं। yes. Means if you have more than one people or more than three people, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो जो आप डिफाइन करते हो कि ग्रुप, लेकिन हाउ इट इज द कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस इन मैथमेटिक्स। ओके, तो मैथमेटिक्स में उसको कैसे किया जाता है, दैट इज दी हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू। अ ग्रुप इज अ नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहला तो क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी मीन्स उसमें कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, दैट इज समथिंग। ओके, a group is a non-empty set G on which there is defined a binary operation, means वहां पे आपको एक बाइनरी ऑपरेशन लेना है, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने स्टार लिखा है। ओके, देयर इज अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए बी टेंस टू ए स्टार बी सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मीन्स जी को आप कब उसको ग्रुप बोल पाएंगे? जब वो प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चारों ही चारों अगर सेटिस्फाई करता है, देन यू कैन से दैट द जी इज अ ग्रुप। ओके, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल। मीन्स आपको जी में से दो एलिमेंट लेना है, और जो ऑपरेशन आप कर रहे हो बाइनरी ऑपरेशन, वो अगर आप फाइंड करो ए स्टार बी, तो वो भी जी में आना चाहिए। ओके, मीन्स फॉर एग्जाम्पल यू हैव 5 पीपल। ओके, वन फॉर एग्जाम्पल अगर चलो नेम से लेते हैं, तो वन है राहुल, ओके, दूसरा है नूतन, तीसरा है कोई भी, है ना, जिमित, और फोर्थ वन कोई भी आप ले सकते हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल किंजन। ओके, तो दिस इज दी वन ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, अब आप इसमें से फॉर एग्जाम्पल ये आर एंड जे आप एक साथ करो, और उसको वो बाइनरी ऑपरेशन के साथ रिलेट करो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई फाइंड आर स्टार जे, और उसका जो भी आउटपुट मिलता है वो भी अगर जी में आ जाता है ना, देन यू कैन से दैट इट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। मीन्स उसका मीनिंग में मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू जी implies a star b belongs to z, then it is our closure property. Any doubt in closure property? No, sir. No. Okay, anybody? नो सर। Okay, No, sir. ओके, देन वी गो फॉर द एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी आप पढ़ के आए हो, है ना, जब बचपन में ये आप करते ही थे। फॉर एग्जाम्पल आप करते थे कि 1+2+5 करते थे कि नहीं? तो इसको आप क्या लिख सकते थे? 1+2+5। एम आई राइट? ओके, तो इसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं। मीन्स इसका आंसर आप चेक करो, ये 5+2 हो जाएगा 7, तो 7+1 हो जाएगा 8, और इसमें आपको पहले 1+2 करना पड़ेगा, दैट मीन्स 3+5 तो 8। डन। तो ये जो है उसको एसोसिएटिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी क्या होगा? तो ए स्टार बी स्टार सी, मीन्स ब्रैकेट में पहले आपको बी स्टार सी फाइंड करना पड़ेगा, देन अप्लाइड टू ए, इज इक्वल टू ए स्टार बी, मीन्स फर्स्ट यू हैव फाइंड ए स्टार बी स्टार सी। ओके, ये ऑलवेज नहीं होता है ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर ये होता है तभी आप उसको ग्रुप बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं आर एंड जे फाइंड कर रहा हूँ, आर एंड जे के लिए, तो मैं आर स्टार जे स्टार, चलो के ले लेता हूँ। ओके, इसमें तो के। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम तरीके से अगर मैं इसको भी फाइंड करूँ तो दोनों का आंसर सेम रहना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर्टी एंड इट इज नोन एज एसोसिएटिविटी। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्योंकि ये इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे No, वेक्टर sir. स्पेस में ये वापिस आएगा, है ना। ओके, आई एम ऑडिबल क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन ओके, एसोसिएटिविटी अगर आपको पता चल गया है, देन वी गो फॉर द आइडेंटिटी। ओके, इट इज वेरी यूजफुल एंड यू आर यूजिंग एवरीवेयर। ओके, आइडेंटिटी तो आप यूज करते ही हो, लेकिन
सिर्फ उसका नेम, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी बोला। ओके, तो आइडेंटिटी मीन्स क्या है, देयर इज एन एलिमेंट वन। ओके, जब वन मीन्स कब, जब स्टार है तब, है ना। अगर एडिशन है तो वो जीरो भी हो सकता है। ओके, मैं दिखाता हूँ कैसे। देयर इज एन एलिमेंट वन इन जी सच दैट, मीन्स कोई एक एलिमेंट होना चाहिए और वो एलिमेंट जो है वो ए स्टार वन इक्वल टू वन स्टार ए इक्वल टू ए वापिस देना चाहिए फॉर ए बिलोंग्स टू जी। मीन्स if you have any element like this which satisfy this a star 1 equal to 1 star a equal to a, then it is your identity. For example, मुझे एडिशन जो प्लस है उसके लिए आइडेंटिटी फाइंड करना है। मेरा ऑपरेशन अगर स्टार की जगह पे मैं प्लस करूं तो मेरा कौन सा होगा आइडेंटिटी, कौन बताएगा? ए। नो, ए तो एलिमेंट है ना खुद। ओके चलो मैं ए के लिए फाइंड करते, चलो तो ए प्लस में यहाँ पे क्या करूँ और यहाँ पे ब्लैंक प्लस ए क्या करूँ तो मुझे वापिस ए मिलेगा। जीरो। जीरो, यस गुड। तो जीरो, यहाँ पर भी जीरो, दैट मीन्स एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो गया? जीरो। अंडरस्टैंड? क्लियर स्टूडेंट? यस सर, यस सर। क्लियर। ओके, अगर मैं डॉट दे रहा हूं मीन्स प्रोडक्ट ले रहा हूं तो मैं ए डॉट ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक डॉट ए, तो मुझे ए कब वापिस मिलेगा प्रोडक्ट में? वन। वन, यस गुड। ओके, तो ये जो है वन वो इसके लिए क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया। डन? एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट? आइडेंटिटी में कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ओके, नाउ वी गो फॉर द इनवर्स। ओके, तो इनवर्स में क्या होना चाहिए कि अगर उसके साथ आप जो भी ऑपरेशन दिया है बाइनरी ऑपरेशन उसको अगर आप कंसीडर करते हो तो वापिस मुझे आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इफ ए इज इन जी मीन्स कोई एलिमेंट लिया मैंने जी में से, जो भी हरकत करेंगे जो भी एक्टिविटी करेंगे वो कहाँ से लेंगे? एलिमेंट जी में से ही लेना है। ओके, तो ए इज इन जी, देयर इज एन एलिमेंट ए इनवर्स मीन्स उसका रेसिप्रोकल मीन्स उसका इनवर्स, ए इनवर्स इन जी, रेसिप्रोकल नॉट करेक्ट वर्ड। ओके, इनवर्स बोलते हैं उसको, ए इनवर्स इन जी सच दैट ए स्टार ए इनवर्स मीन्स वो दोनों का प्रोडक्ट और आगे पीछे करो ए इनवर्स स्टार ए, तो वापिस मुझे जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट था वही मिलना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल प्लस है मेरा ऑपरेशन और मुझे ऐसा चाहिए कि ए प्लस ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक प्लस ए, और मुझे वापिस मेरा प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा था? जीरो। यस, तो मुझे वापिस जीरो मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा तो वो जीरो मिलेगा? व्हाट आई पुट हियर इन ब्लैंक? ए इनवर्स। नो, ए इनवर्स नहीं, उस टाइम पे ये इसका सिर्फ नोटेशन दिया हमने ए इनवर्स। ओके, लेकिन इट इज माइनस ए तभी होगा ना, ए माइनस ए ओके जीरो होगा ना। गॉट इट? अंडरस्टैंड? यस यस सर। सर। तो अब जो ए इनवर्स है जो हमने नोटेशन दिया है वो इस ये केस में क्या हो गया? माइनस ए। डन? क्लियर स्टूडेंट? चलो डॉट के लिए बात करते हैं। तो a इंटू मैं यहाँ पे कुछ रखूंगा इक्वल टू यहाँ पे ब्लैंक इंटू ए, तो उसके लिए आइडेंटिटी कौन सा था डॉट के लिए, प्रोडक्ट के लिए? वन। वन था। ओके, तो मुझे वापस वन लाना है, तो मैं यहाँ पे क्या उसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो वन मिलेगा। व्हाट? ए इनवर्स। ए इनवर्स। ए इनवर्स तो उसका नोटेशन है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? क्या रखूंगा मैं?
1/a ना, यस और नो? Yes, sir. तो Yes. 1/a करूंगा तभी तो मुझे 1 मिलेगा ना. देन आई कैन से दैट द इनवर्स फॉर मल्टीप्लीकेशन इज 1/a. गॉट इट? अंडरस्टैंड इनवर्स? Yes, sir. ओके देन ओके अगर ये 4 सेटिस्फाई करता है मीन्स इफ 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बाय एनी नॉन एम्प्टी सेट Z, then that set is known as the group. ओके डन. तो ग्रुप की डेफिनेशन में कितने लोगों को नहीं पता चला? रेज योर हैंड. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप देन प्लीज रेज योर हैंड. That means all students are understand this. Okay, good. Okay, now next what is abelian group? Okay, अब ये ग्रुप तो हमको मिल गया है लेकिन वो अबेलियन कब होगा? Okay, तो a group G is abelian if the binary operation is commutative. Commutative means if you have plus, that means a plus b is equal to b plus a होता है, then it is known as the abelian group. Okay, बट यहाँ पे हम स्टार के साथ चल रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दैट मीन्स ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, देन इट इज नोन एज द अबेलियन ग्रुप. अंडरस्टैंड? ओके, क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो सर. ओके अब अबेलियन ग्रुप के एग्जांपल ये इसमें से एमसीक्यू पूछ सकते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान रखना. अबेलियन ग्रुप कौन कौन से हैं? तो फॉर एग्जांपल इंटीजर Z मींस नंबर ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर. ओके Z, देन सेट ऑफ रेशनल फंक्शन रेशनल नंबर Q, देन सेट ऑफ रियल नंबर R, एंड देन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C. ऑल आर अबेलियन ग्रुप्स अंडर एडिशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर ये मैं बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डाल देता हूँ तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग भी हो सकता है ना. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एडिशन है तब ये Z, Q, R एंड C चारों सेट क्या हो जाते हैं? वो अबेलियन ग्रुप हो जाते हैं. अगर मल्टीप्लीकेशन है देन यू हैव टू चेक इट. ओके, एनी कंफ्यूजन अप टू हियर in this slide? No, sir. Anybody? Okay, no problem. Then we go for filled. Okay, यहाँ पे आप थोड़ा शांति से समझिए. फील्ड. ओके, अब ये ग्रुप हो गया हमारा, अबेलियन ग्रुप हो गया. मैं धीरे धीरे इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट पता चले. ओके, अगर मैं थोड़ा स्पीड करूँगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें वापस आएगी. ओके ओके, फील्ड. तो फील्ड मीन्स क्या है? और नॉन एम्प्टी सेट F. अब फील्ड के लिए हम कौन सा नोटेशन यूज करेंगे? F. और ग्रुप के लिए आपने देखा होगा कि हमने क्या नोटेशन यूज किया? G. ओके, तो यहाँ पे F, नॉन एम्प्टी सेट F इज सेड टू फॉर्म अ फील्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एंड क्रॉस इफ. ग्रुप में कितने ऑपरेशंस थे? 1 ही ऑपरेशन था. यहाँ पे कितने ऑपरेशन हो गए? 2 ऑपरेशन के साथ वो डील कर रहा है. फर्स्ट कंडीशन पता चल गया कि फील्ड एंड ग्रुप में क्या डिफरेंस है. तो ग्रुप हैज डिफाइंड विथ सिंगल ऑपरेशन एंड फील्ड इज डिफाइंड विथ डबल बाइनरी ऑपरेशंस. मींस प्लस हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, स्टार हो सकता है. मैं खुद का डिफाइन करूं तो जिमित ऑपरेशन भी हो सकता है ना. मींस बहुत सारे आप जैसे डिफाइन करना चाहते हो डिफाइन कर सकते हो. ओके, लेकिन वो बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. ओके, then what are the condition? If it satisfy the following condition then you can say that it is group. Sorry, it is filled, not group. Group already discussed with. Okay, now F plus means F के साथ अगर आप प्लस लेते हो मीन्स एडिशन लेते हो तो इट इज एन अबेलियन ग्रुप. ओके, तो वो जो है आप F के सारे एलिमेंट मीन्स इसमें हो गया हमारा G इज इक्वल टू F. ओके, तो F
और उसके साथ अगर आप प्लस लेते हो तो वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब अबेलियन ग्रुप हमने अभी देखा कि वो क्लोजर सेटिस्फाई करना चाहिए, एसोसिएटिविटी होना चाहिए, आइडेंटिटी भी उसको मिलना चाहिए, इन्वर्स भी मिलना चाहिए और कॉम्यूटेटिव भी होना चाहिए वो। ओके, कॉम्यूटेटिविटी भी उसमें होना चाहिए। तो ये प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, क्रॉस के साथ भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गया कि वो क्रॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्लस। मीन्स ये क्या हुआ, ए क्रॉस बी प्लस सी आप करते हो इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होना चाहिए। उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हमने तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब अगर इस तरीके से भी आप लिखे कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, ओके, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। वो ये सारे एफ में से ही होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन, फील्ड की डेफिनेशन में कितने लोगों को नहीं पता चला? रेज योर हैंड। If you don't understand, then please raise your hand. Okay, no one raised their hand, so I go forward. Okay, अब फील्ड के एग्जाम्पल्स की बात करें तो अब यहाँ पे देखो, ये जो एग्जाम्पल है उसमें से आपको एमसीक्यू निकल सकता है, तो थोड़ा कीप इन योर माइंड। ओके, एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जेड मीन्स set of integers, okay, are not fields under plus and cross, okay, that means वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ वो फील्ड नहीं है। फील्ड नहीं है उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो ये तीन कंडीशन, तीन नहीं है, ये तो ज्यादा है। आप देखेंगे तो फर्स्ट में 4, 1 2 3 4 5, ओके 5, फर्स्ट में 5 कंडीशन है और सेकंड में भी 5 कंडीशन है और ये एक्स्ट्रा, ओके, दैट मीन्स टोटल 11 कंडीशंस आर देयर। ओके, तो ये 11 कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उसको हम फील्ड बोलते हैं। लेकिन ये एन एंड जेड में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए वो नॉट फील्ड माना जाता है। ओके, कौन सी कंडीशन ब्रेक होता होगा आप सोच सकते हो? ओके, चलो ये होमवर्क में देता हूँ, आप सोच के आना, है ना। हम डिस्कस करेंगे कि एन एंड जेड में कौन सी कंडीशन ब्रेक हो रहा है। वो क्लोजर ब्रेक कर रहा है, एसोसिएटिव ब्रेक कर रहा है, आइडेंटिटी ब्रेक कर रहा है, या इनवर्स ब्रेक कर रहा है और कम्यूटेटिव ब्रेक कर रहा है। ओके, तो उसके लिए आप सोचना, थोड़ा पता चलता है तो सोचना, डोंट वरी, है ना, पैनिक मत होना। वेयर एज क्यू मीन्स सेट ऑफ रेशनल नंबर, आर सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर फील्ड्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। मीन्स एन एंड जेड फील्ड नहीं है, लेकिन ये तीन जो है हमारे सेट वो सारे फील्ड है। Any confusion in this slide? Student, any confusion? No, sir. No, sir. Okay, good. Okay, then our main definition, and what is it? Vector space. Okay, चलो वेक्टर स्पेस हम डिस्कस करते हैं। इट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ओके, तो यहाँ पे देखो लेट, अब वेक्टर स्पेस का नोटेशन क्या आ जाएगा? वी, क्योंकि उसका नेम वेक्टर वी से स्टार्ट होता है इसलिए उसको वी बोल दिया। वो एफ से स्टार्ट हो रहा था इसलिए एफ बोल दिया था, ग्रुप में जी से स्टार्ट हो रहा था इसलिए जी बोल दिया था। ओके, तो वेक्टर स्पेस वी, तो लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी तो आपने हर डेफिनेशन में देखा होगा, क्योंकि अगर वो एम्प्टी हो जाता है तो देयर इज नो मीनिंग, एनी मीनिंग। ओके, सो लेट V be a non-empty set and F be a field। ओके, जो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट था कि वो फील्ड होना चाहिए। ओके, तो ये फील्ड होने के लिए मैंने यहाँ पे आपको फील्ड डिस्कस किया। अब फील्ड में क्या आ रहा था? ग्रुप आ रहा था, तो ग्रुप डिस्कस किया, और अबेलियन ग्रुप भी आ रहा था इसलिए अबेलियन ग्रुप भी डिस्कस किया। दैट मीन्स दीज बोथ आर द प्री रिक्वेस्टीज ऑफ अवर टॉपिक, दैट्स व्हाई आई explain it. Okay, so let V be a non-empty set and F be a field, then capital V is called as vector space over the field F if number 1 V is a commutative group under plus, means वो commutative group होना चाहिए। ओके, चलो commutative group बोला तो कौन कौन सी कंडीशन आ गई इसमें, कौन बताएगा?
कॉम्यूटेटिव ग्रुप बोला है, तो कौन कौन सी कंडीशन आ गई? चलो बताओ, आपने ग्रुप डिस्कस किया ना, तो कौन कौन सी कंडीशन यू हैव? स्टूडेंट बताओ यार, कुछ तो बताओ, चाहे वो गलत हो या राइट हो, कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन कुछ बताओ। कोई नहीं बता पाएगा? स्टूडेंट विधि, धैर्य, Yes, sir. हाँ चलो बताओ, कुछ तो बोलो। राइट या रॉन्ग बताओ, कुछ तो मुझे सुनना ही है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप समझ रहे हो कि नहीं। हाउ मैनी प्रॉपर्टीज इन दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट में कितनी प्रॉपर्टी आ गई? ग्रुप मैंने बोला था कि ग्रुप आप यहां से देख सकते हो, चलो कौन कौन सी हो गए? Those are associativity, identity. यस, दैट मीन्स 4 तो हो गया ग्रुप के अंदर। Hmm. अब कॉम्पिटेटिव है, दैट मीन्स 5th। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखा उसमें टोटल कितनी प्रॉपर्टीज आ गई? 5 प्रॉपर्टी। एंड विच आर दे? दैट मीन्स फर्स्ट इज क्लोजर, ओके, सेकंड इज एसोसिएटिविटी, Inverse. यस, पहले आइडेंटिटी आएगा, है ना, इसका आप फ्लो याद रखो, है ना, तभी आपको याद रहेगा, क्योंकि इनवर्स से पहले मुझे आइडेंटिटी चाहिए, इसलिए मैंने पहले आइडेंटिटी लिखा, उसके बाद इनवर्स, और उसके बाद कॉम्यूटेटिव बोला है। तो हमने देखा था ना कि अगर वो कॉम्यूटेटिव है ना, लिखा था ना हमने कि वो कॉम्यूटेटिव है, तो उसको क्या बोलेंगे? अबेलियन। दैट मीन्स वहां पे आ गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो, ओके। तो कॉम्यूटेटिव, तो 1 2 3 4 5, तो 5 प्रॉपर्टी पहले ही सेंटेंस में हमने कर दिया, ओके। देन देखो यहाँ पे देखो, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, मीन्स मैंने 2 नंबर कांस्टेंट लिए फील्ड में से, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ। अब जो 2 एलिमेंट है वो मैंने वी में से लिए, ओके, तो ये दोनों हो गए। तो अल्फा इंटू यू में अगर करता हूं तो अल्फा स्केलर है, तो अल्फा इंटू यू बिलोंग्स टू वी होता है, तो उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं वो? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है उसको? फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। डन, ओके। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स ये 6 हो गया। चलो नेक्स्ट जाते हैं। तो यहाँ पे अगर अल्फा यू प्लस वी इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस अल्फा वी एंड अल्फा प्लस बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस बीटा वी होता है, तो वो 7th प्रॉपर्टी, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ओके। देन 9 अल्फा इंटू बीटा यू, दिस इज योर 9 प्रॉपर्टी। अल्फा इंटू बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा बीटा यू इज इक्वल टू बीटा अल्फा यू, और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड यू बिलोंग्स टू वी। यहां पे देखो 2 चीजों को मिक्स किया है, वो फील्ड एंड वी मीन्स आवर स्पेस, ओके, मीन्स आवर सेट, स्पेस मीन्स सेट, ओके, और उसको हम एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू वी, ओके। तो ये 9th प्रॉपर्टी हो गया। एंड 10th प्रॉपर्टी आप देखो, ये आइडेंटिटी के लिए, लेकिन स्केलर आइडेंटिटी है। 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 1 कर दिया उन्होंने, तो 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू होता है, तो वो 10th प्रॉपर्टी। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट वी कोई फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस कब होगा? जब ये वो 10th प्रॉपर्टी का सेटिस्फेक्शन करेगा, ओके। इफ इट इज सेटिस्फाइड 10 प्रॉपर्टीज, then you can say that it is vector space. Any doubt in definition? Student, आप यस भी नहीं बोलते हो और कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं बोलते हो, तो No, कैसे sir. बताएगा? ओके, नो, नो डाउट, गुड। अदर स्टूडेंट, गिव मी योर कंफर्मेशन। धैर्य, No doubt, sir. सुरेश,
हिरवा, कांचन, त्रुशैल, No doubt. ओके, सौम्य और ऑल स्टूडेंट. sir. No doubt. सॉरी, No doubt, say it, sir. ओके ओके ओके. 503, 508. Any doubt? No doubt, sir. ओके ओके. तो वेक्टर स्पेस के लिए आपको अगर कोई एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, ये 10 प्रॉपर्टीज आपको सेटिस्फाई करके चेक करना है. अगर वो 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है देन यू कैन से दैट इट इज वेक्टर स्पेस. अगर उसमें से कोई भी एक ब्रेक हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपका पहले क्लोजर से स्टार्ट किया तो क्लोजर होता है, एसोसिएटिव होता है, आइडेंटिटी होता है, इनवर्स होता है, लेकिन वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, देन यू कैन से दैट इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस. ओके, कोई एक ही हमको रिक्वायरमेंट है कि वो एक ब्रेक हो गया, देन यू कैन से दैट इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस. ओके, चलो उसके नोटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं. लेट वेक्टर स्पेस V ओवर F इज डिफाइंड बाय VF. अब वेक्टर स्पेस का नोटेशन क्या हुआ, कैपिटल V ब्रैकेट F. अब जो F में आप कोई भी लो उस अकॉर्डिंगली वो वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं वो आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको एलिमेंट इसमें से भी लेना है और इसमें से भी लेना है. ओके, जो आपको दिया है उस हिसाब से आपको सोचना है कि जो बाहर वाला है वो हमारा V है, अंदर वाला वो मेरा फील्ड है. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर स्पेस. मीन्स उसको वेक्टर स्पेस की जगह पे कभी कभी क्या बोल देते हैं, लीनियर स्पेस भी बोल देते हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी लीनियरिटी के साथ मैच होता है, इसलिए उसको लीनियर स्पेस भी बोल देते हैं. मीन्स वो वन डायमेंशनल में. ओके, डन. इफ F इज इक्वल टू आर, ओके चलो F इज इक्वल टू आर, मैंने F को R बोल दिया तो हमारा नोटेशन क्या हो जाएगा, V R. ओके, ये है is a vector space over the set of all real numbers which is also called real vector space. Means अगर आप फील्ड को कैपिटल R बोल देते हो, फील्ड को कैपिटल R, सेट ऑफ रियल नंबर बोल देते हो, तो ये इसको हम स्पेशल नेम देते हैं एंड इट इज अवर रियल वेक्टर स्पेस. ओके, उसको क्या बोलेंगे, रियल वेक्टर स्पेस. अगर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मीन्स फील्ड हमारा कॉम्प्लेक्स है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन V ऑफ C होगा हमारा नोटेशन एंड इट इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस. ओके, तो रियल वेक्टर स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस. एनी कंफ्यूजन इन बिटवीन दिस स्टूडेंट? No, sir. No, sir. Okay, then we go for first example. Okay, so what is my first example? If V is equal to F, okay, means मेरा V F दोनों सेम है एंड वो दोनों R है. R means what is my R here? Dear student, what is my R here? नो आइडिया. तो इतना सारा डिस्कशन मेरा वेस्ट चला गया. हम बार बार बोल रहे थे कि कैपिटल N, कैपिटल Z, कैपिटल Q, कैपिटल R एंड कैपिटल C. ओके, तो ये सारे जितने भी हैं उसके ऊपर ये थियरी डेवलप किया गया है, नथिंग एल्स. ओके, तो जब भी आपको कैपिटल N दिखाई दे, यहाँ पे लाइन साइड में इसलिए कर रहा है कि वो डिफरेंट दिखाई दे, नहीं तो सिंपल N लिखेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा. लेकिन ये जो है इट इज स्ट्रिक्टली द सेट ऑफ, क्या होगा, Natural number. Natural number. नेचुरल नंबर. दिस इज द सेट ऑफ Z. Z क्या होगा, सेट ऑफ Integers. इंटीजर्स. Q क्या होगा, व्हाट इज माय Q, Rational numbers. रेशनल नंबर्स. यस. व्हाट इज माय R Real number. Real Real numbers. एंड व्हाट इज माय C? C. C क्या है, यहाँ पे हमने जो C लिया वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. Complex number.
हाँ, तो Complex ये number. यस, ये सारे सेट के साथ हम डील करेंगे। ओके, जहां पर भी जो भी नोटेशन दिया है अकॉर्डिंगली आपको सोचना है। तो यहाँ पे मुझे आर दिया है, दैट मीन्स आई हैव सेट ऑफ रियल नंबर्स। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay, so we are dealing with set of real numbers. So if v is equal to f is equal to r, then rr means v मेरा r है, हमारा नोटेशन ओरिजिनल कैसा है vf, ओके, वेक्टर स्पेस के लिए। तो rr इज अ वेक्टर स्पेस। ओके, ये मुझे चेक करना है कि ये मुझे दिया। ओके, इसमें एक अच्छी बात ये है, ये एग्जांपल में, कि आपको बोल ही दिया है कि वेक्टर स्पेस है। इफ you have a vector space, then you have only remaining work is you have to satisfy these 10 properties. ओके, पता चल गया है कि यहाँ पे आपको बोला ही है कि वेक्टर स्पेस है, ऐसा प्रूव करो। ओके, अब ये वेक्टर स्पेस है तो मुझे 10 प्रॉपर्टी सेट करके देना है उनको। अंडरस्टैंड? क्लियर? एम क्या है हमारे ये एग्जाम्पल का? Yes. ओके, चलो अब ये एग्जाम्पल का 1 by 1 देखना और लिखना। एवरीबडी शुड राइट। ओके, क्योंकि इफ यू डोंट राइट देन यू फॉरगॉट इट डेफिनेटली। ओके, आई एम श्योर अबाउट इट। तो चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं उसके लिए। ओके, ये रहा मेरा एग्जाम्पल। if v is equal to r is equal to f, then rr is a vector space. Okay, I start with first property. Okay, and it is my closure property. तो क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स क्या है कि जो आपका फील्ड है उसमें से आपको एलिमेंट लेना है। यहाँ पे एक साथ 3 ले लिए हैं तो हम 2 भी ले सकते हैं। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, यहाँ पे देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि 2 एलिमेंट आपको वो सेट में से लेना है और वो दोनों भी उसमें उसके ऊपर ऑपरेटर अगर आप यूज करें तो वो भी वापस उसी में आना चाहिए। दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे देखो, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अगर आप 2 लेते हैं तो भी चलेगा। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ओके, यहाँ पे नहीं बोला है कि कौन सा ऑपरेशन है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं हम कि आर आर इज अ वेक्टर स्पेस विथ यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो फर्स्ट मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। चलो तो मैं यहीं पे करता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए वो देखते हैं। तो क्लोजर, ओके, तो क्लोजर में क्या करना है, मुझे 2 पॉइंट लेना है। तो मैंने 2 पॉइंट ले लिया और मेरा जो वेक्टर स्पेस दिखाना है वो मेरा ऐसा है। ओके, तो मैंने 2 एलिमेंट लिए एक्स वाई, आप ए भी ले सकते हो, नो इश्यू, बिलोंग्स टू आर। तो अब अगर मैं उसको x प्लस वाई करता हूं तो r में आएगा कि नहीं, वो आपको सोचना है। x प्लस वाई, चलो एग्जांपल लेते हैं। तो 2 and 10 दोनों ही दोनों r में है, यस और नो? Yes, sir. तो मैं अगर 2 प्लस 10 करूं तो मेरा फाइनल आंसर आया 12, वो भी r में आएगा कि नहीं? ट्वेल्व आर में आएगा कि नहीं? आएगा। हाँ, तो उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू आर। तो सेम कंडीशन सभी के लिए होगा कि नहीं, एवरी पॉइंट के लिए, कि आर का मैं कोई भी पॉइंट लूँ, चलो -1 लूँ या -100 लूँ या 1000 लूँ या 1 लाख लूँ। ओके, तो 1 लाख लेता हूँ तो पर भी वो अंदर आएगा कि नहीं, यस और नो? ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर implies x plus y also belongs to R. ओके, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। डन? एनी कंफ्यूजन No, sir. क्लोजर प्रॉपर्टी में? No, sir, no confusion. ओके, इट इज वेरी सिंपल। ओके, नाउ वी गो फॉर द सेकंड कौन सा है हमारा, चलो बताओ। एसोसिएटिविटी। Associative. यस Yes, sir. Associative. एसोसिएटिव। ओके,
तो एसोसिएटिव में मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो आई एम कंसिडरिंग एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ओके, तो मुझे दिखाना क्या है कि अगर मेरा क्या होगा उसके लिए x प्लस वाई प्लस जेड अगर लेता हूं और मैं x प्लस वाई प्लस जेड लेता हूं तो दोनों सेम होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल एग्जांपल, चलो आप मुझे 3 नंबर दो जल्दी फटाफट, हाँ जल्दी 3 नंबर दो। चलो रोल नंबर ही ले लेता हूं, एक 2 ले लिया, एक 5 ले लिया और एक 24 ले लिया। ओके, अब आपको ये चेक करना है कि मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा वो सही है कि नहीं। इज इट ट्रू? Yes, sir. Yes, ओके, sir. ये और ये हर एक नंबर Yes. के लिए होगा, रियल नंबर के। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. दैट मीन्स इट इज एसोसिएटिव, है ना? Yes. ओके, दैट मीन्स इट इज एसोसिएटिव। डन? ओके, और आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इट सेटिस्फाई एसोसिएटिविटी। ओके, नंबर 3 कौन सा कंडीशन आया, कौन सा प्रॉपर्टी आया? आइडेंटिटी। Identity. तो आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले आपको दिमाग में होना चाहिए कि आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है कि आपको a प्लस के बारे में आप डिस्कस करते हो तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए अगर आप करें तो a मिले, है ना? ऐसा आपको b फाइंड करना है। यस और नो? सही लिखा मैंने? Yes. ओके, तो मुझे ऐसा b मिलना चाहिए। तो r के लिए वो b क्या होगा, कौन बताएगा? Zero. यस, जीरो, है ना? तो आप कोई भी नंबर को जीरो के साथ एडिशन करेंगे तो वापस वो नंबर मिलने ही वाला है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली कि हियर, सॉरी नीचे से लिखा है, ओके, हियर देखो उसको लिखा कैसे जाता है। तो हियर e इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा आइडेंटिटी कौन सा है, जीरो है। तो e इज इक्वल टू, आइडेंटिटी का e बोला, तो e इज इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू r सच दैट x प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस x इज इक्वल टू x, है ना? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मीन्स हर एक के लिए वो r मिलेगा। दैट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया वो। एनी प्रॉब्लम इन आइडेंटिटी स्टूडेंट? No, sir. सबको आंसर देना है, प्लीज गिव मी योर कंफर्मेशन क्विकली। No, sir. ओके, No, sir. ओके, No, sir. sir. ओके, गुड, थैंक यू। ओके, देन नंबर 4, व्हाट इज माय फोर्थ कंडीशन, फोर्थ प्रॉपर्टी? Inverse. यस, इट इज इनवर्स। इनवर्स, तो इनवर्स के लिए क्या करना है? तो इनवर्स के लिए आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो ओके, इनवर्स के लिए मेरा क्या है, डेफिनेशन क्या है मेरा? तो इनवर्स के लिए मुझे a प्लस ए इनवर्स, ये तो मेरा नोटेशन है, ओके, इज इक्वल टू ए इनवर्स प्लस ए, और वो मुझे आइडेंटिटी यहाँ पे मैंने e लिया है इसलिए e मीन्स जो भी आइडेंटिटी हो इस तरीके का सेटिस्फाई करना चाहिए। तो r में कौन इनवर्स होगा? एडिशन के साथ, हाँ सभी हम किसके साथ कर रहे हैं? एडिशन के साथ, वो भी मैटर करता है ना? तो एडिशन के लिए कौन सा होगा? 1. यस, 1 नहीं, इनवर्स की बात कर रहे हैं। 1 एंड 0 तो आइडेंटिटी के लिए हो सकते हैं, है ना? लेकिन इनवर्स के लिए क्या होगा? 1/a. 1/a किसके लिए होगा, सोचो। मुझे तो ऐसा चाहिए, देखो यहाँ पे मुझे ऐसा चाहिए कि अगर मैं x प्लस वाई करता हूं
तो मुझे यहाँ पे इन्वर्स चाहिए ना मुझे, ओके, और y प्लस एक्स करता हूँ तो मुझे मेरा ज़ीरो जो मेरा आइडेंटिटी मिला है प्रीवियस में, मैंने बोला कि ये मेरा आइडेंटिटी है तो वो ज़ीरो लाना है। तो मैं x के साथ किसका एडिशन करूँ तो वो मुझे ज़ीरो देगा। -x. यस, दैट फॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा -x, है ना, क्लियर, ओके। तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, फॉर x belongs to R माइनस एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू R, होगा ना, कि अब कोई भी नंबर लो उसका माइनस भी उसमें होगा कि नहीं, होगा. सच दैट x प्लस माइनस एक्स is equal to 0 and it is my identity, okay, is equal to minus x plus x. Therefore it has an inverse minus x. डन, ओके, या फिर आप सीधा इतना लिखेंगे जनरल स्टेटमेंट तो भी चलेगा, इट हैज एन इनवर्स, ओके, नथिंग एल्स, ओके, इट हैज एन inverse. Any confusion up to fourth property? Anybody? No, sir. No No, doubt, sir. sir. Okay, then we go for fifth. What is my fifth condition? क्या होना चाहिए वो फिफ्थ कंडीशन में? क्लोजर हो गया, एसोसिएटिविटी हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया, नाउ इट विल बी कॉम्यूटेटिव। ओके, देन कॉम्यूटेटिव के लिए यहां पे हम लिखेंगे कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या है, एनीबडी? कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए? भूल गए इतने में तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b प्लस ए, है ना। तो यहाँ पे मैं x एंड y के साथ चल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं x y ही लूंगा, है ना। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा उसको, तो यहाँ पे देख लो, ऑल्सो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये सही है कि नहीं सारे एक्स वाई के लिए? मीन्स अगर आप 100 प्लस -400 करते हो और -400 प्लस 100 करते हो तो दोनों का आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा? Same. सेम आएगा, दैट मीन्स इट इज कॉम्पिटिटिव। ओके, देयरफॉर उसको मैथ्स में ऐसे लिखते हैं, आर प्लस इज कॉम्यूटेटिव, क्योंकि ये ग्रुप है तो ग्रुप को ऐसे ही लिखते हैं कॉम्यूटेटिव। डन, फिफ्थ प्रॉपर्टी तक एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट? No, sir. नो, ओके। अब सिक्स प्रॉपर्टी, ओके, यहां तक देखो सारी हमने जो किया वो प्लस के साथ है, क्लोजर भी हमने प्लस के साथ किया, एसोसिएटिविटी भी प्लस के साथ किया, आइडेंटिटी भी प्लस के साथ किया, इनवर्स भी प्लस के साथ किया, कॉम्यूटेटिव भी प्लस के साथ किया। अब जो सिक्स प्रॉपर्टी से जो आगे बढ़ेंगे वो सारे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए होंगे। किसके लिए होंगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो फर्स्ट जो है वो सिक्स, फर्स्ट कंडीशन कौन सा होगा स्केलर के लिए, कि मुझे पहले दो स्केलर लेना है। सिक्स कंडीशन मेरा क्या है, देखो सिक्स कंडीशन, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ लेना है ना, एंड यू वी बिलोंग्स टू वी, तो अल्फा यू बिलोंग्स टू वी बताना है। तो होगा कि नहीं वो, बोलो चलो, यस और नो, ये ट्रू है? ट्रू कौन सा है, तो यहां पे देखो, नाउ फॉर एनी स्केलर, सॉरी फॉर रह गया, फॉर एनी स्केलर अल्फा बिलोंग्स टू आर, क्योंकि मेरा फील्ड में से लेना है लेकिन फील्ड मेरा आर है, एंड यू बिलोंग्स टू आर, वी भी मेरा आर है तो यू बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर अल्फा यू बिलोंग्स टू आर। ये सही है कि नहीं, यस और नो? कि मैं अगर कोई स्केलर 2 लेता हूं और उसको कोई 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 इंटू 10 हो जाएगा 10, और वो भी आर में आएगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर, ओके गुड, थैंक यू। तो यहाँ पे आया अल्फा यू बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स क्या हुआ, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी
क्लोजर है ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर्स इज रियल। ओके डन। 6 प्रॉपर्टी में कोई डाउट किसी को भी? एनीबडी? जल्दी बताओ हाँ प्लीज। No, sir. ओके No, sir. ओके देन वी गो फॉर 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी किसको बोला था हमने? अल्फा यू प्लस वी इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस अल्फा वी। ये भी होगा। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल 7th प्रॉपर्टी मैंने लिया कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू एफ, एफ इज इक्वल टू मेरा आर। ओके तो मैंने आर लिख दिया एंड यू वी बिलोंग्स टू आर। ओके वो भी मेरा आर है, वी जो है मेरा आर है। ओके तो अब मुझे क्या दिखाना था कि अल्फा इंटू यू प्लस वी। ओके अल्फा इंटू यू प्लस वी इट इज ऑल्सो क्या हो सकता है? अल्फा यू प्लस अल्फा वी। यस और नो? ये ट्रू है कि नहीं रियल नंबर के लिए? फॉर एग्जाम्पल 2 3 प्लस 5 करता हूं, इट इज ट्रू फॉर 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। चेक करो तो ये ट्रू हो रहा है कि नहीं? 5 प्लस 3 कितना होगा? 8, 8 इंटू 2 16। ओके एलएचएस में मेरा आंसर 16 आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं, चलो 6 प्लस 10 ट्रू है ना? यस सर ट्रू। और सारे एलिमेंट के लिए ट्रू होगा। यस और नो? Yes. ओके तो 7th प्रॉपर्टी मेरा ट्रू हो गया। ओके 8 प्रॉपर्टी नंबर 8। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है मेरा? उसमें भी सेम करना है लेकिन 2 कांस्टेंट के साथ और एक ही एलिमेंट v का लेना है। तो यहां पे क्या होगा? लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू r इज इक्वल टू f and u belongs to r is equal to v. Therefore alpha plus beta into u is equal to alpha u plus beta u। ये ट्रू होगा कि नहीं, या मुझे एग्जांपल देने की जरूरत है? ट्रू होगा सर। ट्रू होगा ना, रियल नंबर के साथ होगा। Yes, है sir. ना, हम अभी रियल नंबर के साथ ही जा रहे हैं तो रियल नंबर में इट इज ट्रू। ओके देन 9th प्रॉपर्टी। ओके तो 9th प्रॉपर्टी कौन सा लिखा था हमने? ओके उसमें प्रोडक्ट आ गया। देखो अल्फा इंटू बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा बीटा यू। इसमें भी हमको दो कांस्टेंट लेना है एंड एक वेक्टर में से लेना है। दैट मीन्स लेट अगेन अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर is equal to f and u belongs to r is equal to v. Therefore alpha into beta into u is equal to, अब देखो क्या लिखना था? तो अल्फा बीटा यू, पहले बीटा को उसके साथ ले लो। दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा यू इज इक्वल टू बीटा अल्फा यू। मीन्स ये कैसी सिचुएशन हुई? तो अगर आप 3 का प्रोडक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आई एम डूइंग 2 इंटू 4 इंटू 5। ओके तो मैं क्या करूंगा? सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, हमको पहले 2 ब्रैकेट में लेना है। तो क्या होगा देखो, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा? पहले 2 को भी बाहर रख सकता हूं और 3 एंड 5 को भी प्रोडक्ट कर सकता हूं। और दूसरा कि 3 को बाहर रखूं एंड 2 इंटू 5 कर सकता हूं। तीनों का आंसर चेक करो। चलो तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 30 हो गया। अब यहाँ पे 15 इंटू 2 ये भी 30 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 5 पहले करेंगे तो 10, 10 इंटू 3 वो भी 30 हो गया। इज इट ट्रू और नॉट? यस सर। ओके Yes, sir. रियल नंबर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, वो उसके साथ हो ही रहा है। अब लास्ट प्रॉपर्टी एंड इट इज 10। ओके एंड व्हाट इज इट? आइडेंटिटी फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू। तो यहाँ पे
आप हर किसी को भी आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस u मिलेगा कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. है ना, मिलेगा ना। तो ये 10 प्रॉपर्टीज आप देखो तो सेटिस्फाई हो गया, यस और नो? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तो क्या बोलते हैं उसको हम? क्या बोलते हैं? बोलो। Group. ग्रुप। चेक करो चेक करो, ग्रुप बोला था हमने उसको, 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तो Vector space. Vector. यस, वेक्टर स्पेस। ओके, तो थर्स फ्रॉम ऑल अबव वेरीफाइड, आई गया वेरीफाइड प्रॉपर्टीज जो हमको प्रूव करने के लिए बोला गया था, कौन सा प्रूव करने के लिए बोला गया था? आर आर। ओके, तो उसी को लिखेंगे आर आर, या फिर ऐसा भी आप लिख सकते हो वी एफ इज इक्वल टू आर आर इज ए वेक्टर स्पेस। ओके, और अगर आप दूसरी तरीके से लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो ऑल द प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड therefore the by definition of vector space given space is a vector space। ओके, वो भी चलेगा और ये भी चलेगा। एनी कंफ्यूजन इन दिस एग्जांपल स्टूडेंट? रिप्लाई तो दो, गिव मी योर रिप्लाई। No, No, sir. sir. No confusion. नो कंफ्यूजन? ओके,